अब यहाँ से करते हैं चालुक्य पल्लवाज एंड संगम पीरियड। ठीक है, तो इन द 9th century CE, अब 9th century CE में द फाउंडेशन ऑफ चोला एम्पायर वॉज लेड बाय विजयालया। ठीक है, वैसे ये जितना हाईलाइट है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी दोबारा देख लेते हैं। तो द टेम्पल कॉम्प्लेक्स दैट इज़ अ मैसिव स्टैचू ऑफ नंदी considered to be the biggest in India, that is in the premises of Brihadeshwar temple, and the Brihadeshwar temple very famous in Tanjore. So Tanjore is in Tamil Nadu. It was built by the Chola Emperor Rajaraj I. The Chola Empire was expanded to the Coromandel coast and some regions of the Deccan as well. जैसे ही हमने देखा था कि वो गैंजेस तक पहुंच गए थे और गंगाईकोंडा चोलापुरम इसलिए नाम भी धारण किए थे। The founder of Chola dynasty was Vijayalaya, and the special feature of Chola administration was autonomy of village administration. ठीक है, out of the given options, namely Kaveripatnam, Mahabalipuram, Kanchi, Tanjore, which was the capital of Chola, so it was Tanjore. The dynasty which was famous for efficient rural administration, that was Cholas, and development of village autonomy was a unique feature of the administration of the Cholas. A lot of details regarding the village administration and under the Cholas are provided by the Uttaramerur inscription. During the rule of the Chola kings who looked after the garden administration, so there was a committee called Thotavariyam who used to look after the garden administration. And the following two statements are affirmative. The Cholas defeated Pandyas and Cheras and established their domination over peninsular India in the early medieval times. The Cholas sent an expedition against Shailendra Empire of the Southeast Asia and conquered some of the areas. Bronze icons of Nataraj cast during the Chola period invariably show the deity with how many hands? So 4 hands. And most famous sculptures of the Cholas age were made of bronze, and for example the Nataraj Shiva जिसमें 4 हाथ करके शिवा नाचते हुए दिखाए गए हैं. And it is very similar to the Dakshin Murti idol of the Shiva, which जिसमें कि 4 हाथ में 4 चीज़ें पकड़े रहते हैं, जिसमें कि दक्षिण मूर्ति शिवा को एक गुरु और टीचर के रूप में दिखाया गया है. पिछले वीडियो मैंने बताया था कि उस 4 हाथ में 4 इक्विपमेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है. द इमेज रिप्रेजेंटिंग डांसिंग शिवा हैविंग 4 हैंड्स इन हिज राइट ईयर, वो एक मेल मतलब मैन ईयरिंग पहनते हैं और लेफ्ट ईयर में एक विमेन ईयरिंग पहनते हैं. नाउ 72 ट्रेडर्स हु वर सेंट टू चाइना. अब ये जब भी 72 ट्रेडर्स और चाइना का बात आएगा समझ लेना कि कोलू टुंगा नाम के कोई चोला रूलर थे. उनके समय में 72 traders were sent to the China as a diplomatic mission out of the South India states, namely Chola, Chera, Pallava, Rashtrakoot, who was famous for its naval power. So again Cholas. The Chola ruler who converted the Bay of Bengal into a Chola lake, that was Rajendra I, not anyone else, but it was Rajendra I. तो Bay of Bengal को Chola lake बना दिया था. इतनी ज़्यादा नेवी इनकी एक्सपैंड हो गई थी, तो दैट वाज राजेंद्र I. The founder of Gangaikonda Cholapuram, that is again Rajendra I, and the Chola ruler who is credited to have built a huge artificial lake known as Chola Gangam, that is again Rajendra I ही होंगे ये. The temples are chronologically arranged. अब ये सप्त पगोड़ा है, शोर टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल है और गंगाईकोंडा चोलापुरम है टेम्पल है. तो इसमें देखो ये चीज़ हमको नहीं पता था, बाकी ऐसा निमोनिक बना सकते हो SS, दैट मीन्स सप्त पगोड़ा फिर शोर टेम्पल. शोर टेम्पल कहाँ है? महाबलीपुरम में है. तो S फॉर सप्त पगोड़ा और फिर S फॉर शोर टेम्पल. तो ये क्रोनोलॉजिकली सही हो गया. पहले सप्त पगोड़ा आएगा, फिर शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम आएगा, उसके बाद फिर बृहदेश्वर टेम्पल आएगा पहले मतलब, और फिर गंगाईकोंडा चोलापुरम आएगा चौथे नंबर पे. ठीक है, तो SSBG. सो सप्त पगोड़ा टेम्पल, फिर शोर टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन महाबलीपुरम, फिर बृहदेश्वर टेम्पल और फिर जी से गंगाईकोंडा चोलापुरम टेम्पल. नाउ द चोला किंग हु स्टार्टेड नेवल आर्मी, दैट इज़ राजेंद्र I. सॉरी, द वर्ड स्टार्टेड है यहाँ पे, तो राजाराज I ने स्टार्ट तो कर दिया था. और श्रीलंका किसने कॉन्कर किया था? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका राजाराज I. और पूरा का पूरा सेलोन किसने, मतलब पूरा श्रीलंका किसने कॉन्कर किया? राजेंद्र I ने. तो ये छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस पकड़ के रखो कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ सेलोन वाज कॉन्कर्ड बाय राजाराज I. उस वक्त तक नेवल सुप्रीमेसी इतनी ज़्यादा नहीं बनी थी, बट स्टार्ट हो गई थी वरना, और राजेंद्र I तक आते आते पूरा का पूरा सेलोन कैप्चर कर लिया था. द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चोला
We have much more information about Cholas than their predecessors. The Chola rulers adopted the practice of having inscriptions written on the walls of temples, giving a historical narrative of their victories. हाँ, तो ये सही बात है, ये सही स्टेटमेंट है. Now the Chola monarch who gave complete freedom to Sri Lanka and got his daughter married to the Sinhala prince. तो ये कोलुटुंगा था, वही जिसके समय में 72 चोला मर्चेंट्स या 72 ट्रेडर्स फ्रॉम द चोला एम्पायर वर सेंट टू श्रीलंका. तो ये वही कोलुटुंगा चोला रूलर हैं जो अपनी बेटी का विवाह कराए थे सिन्हाला प्रिंस ऑफ सेलोन से, और साथ ही साथ सेलोन को इंडिपेंडेंस दे दिए थे. सो दिस इज़ ऑल्सो सिग्निफाइंग दैट कोलुटुंगा मस्ट हैव कम आफ्टरवर्ड्स राजा राजवन एंड राजेंद्र वन. नाउ ये क्या है? उदयनजिराल. उदयनजिराल अभी हम पहली बार सुन रहे हैं. उदयनजिराल ये चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते थे. ठीक है, उदयनजिराल बिलोंग टू द चोला डायनेस्टी. ठीक, उदयनजिराल बिलोंग टू द चोला डायनेस्टी. नाउ अब ये कुछ टर्म्स हैं जैसे एरीपट्टी, घटिकाज, तनियूर्स. अब तनियूर्स मतलब होता है विच इज़ अ वेरी लार्ज विलेज वुड बी एडमिनिस्ट्रेड एज अ सिंगल यूनिट कॉल्ड तनियूर्स. अगर कोई बहुत बड़ा गांव है और उसको एडमिनिस्टर करना है एज अ सिंगल यूनिट, सो दैट वेरी लार्ज विलेज इज कॉल्ड तनियूर्स. मोटा मोटा तनियूर्स बेसिकली मीन्स अ वेरी लार्ज विलेज. घटिका college generally attached to the temple, and Eripatti, which is land revenue from which was set apart for the maintenance of village tank. तो पानी और टैंक में पानी की व्यवस्था बनी रहे, पानी का शॉर्टेज ना हो, इसके लिए एरीपट्टी एक प्रकार का लैंड रेवेन्यू से निकाला हुआ हिस्सा था जिससे कि टैंक्स, आर्टिफिशियल टैंक्स बनवाने थे, रिजर्वायर. ओके, आउट ऑफ द गिवन ट्रेड सेंटर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया नेमली तगारा, श्रीपुर, त्रिपुरी एंड ताम्रलिप्ति विच वॉज ऑन द ट्रेड राउट कनेक्टिंग कल्याण एंड वेंगी. तो कल्याण एक जगह थी साउथ इंडिया में और एक जगह थी वेंगी, और दोनों बहुत प्रोमिनेंट प्लेसेस थी, एंड बोथ दीज प्लेसेस वर कनेक्टेड वाया द ट्रेड रूट ऑफ तगारा. और बाकी के भी नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है. तगारा, श्रीपुर, त्रिपुर एंड ताम्रलिप्ति. ठीक है, ताम्रलिप्ति तो सबको याद है. तगारा, श्रीपुर एंड त्रिपुर. श्रीपुर, त्रिपुर, तगारा. These were the ancient India trade centers. ठीक है, तगारा, श्रीपुर, त्रिपुर. आउट ऑफ विच तगारा जो जोड़ता था कल्याण और वेंगी को. देन द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ चालुक्य डायनेस्टी वॉज पुलकेशन II, एंड द इंफॉर्मेशन अबाउट द किंग विच इज़ फाउंड इन द कुरुशपाल इंस्क्रिप्शन. दिस इज़ समथिंग आई एम गेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम ईयर. कुरुशपाल इंस्क्रिप्शन ये सोमेश्वर वन के बारे में बताता है. So Kurushpal inscription, this tells about the king Someshwar I. Out of the given dynasties, namely Chola, Chalukya, Pala and Sena, which assigned to the ladies high ranking position in administration, so that is Chalukya. बाकी में नहीं था. तो women were appointed in high ranking positions in the administration. That was very evident in the Chalukyan empire of Pulkeshi II. The capital of Chalukyas was Vatapi. Out of the given institutions, namely Shreni, Nagaram, नांदेसीज एंड मनीग्रामम, एंड विच बिलोंग टू द फॉरेन ट्रेड. फॉरेन ट्रेड के लिए मनीग्रामम और नांदेसी थे, बेसिकली ट्रेडिंग गिल्ड्स थे ये. और फॉरेन ट्रेड भी, ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक ट्रेड नहीं होता था, बट फॉरेन ट्रेड ज़्यादा इन्हीं में होता था. द नेम ऑफ पोएट कालिदास इज मैंशन इन द ए होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन II. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. कालिदास तो गुप्त काल के थे, आई थिंक चंद्रगुप्त II के समय, और उनका नाम ए होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन II. अब ये रवि कीर्ति ने लिखा था, तो रवि कीर्ति हैड रिटन ए होल इंस्क्रिप्शन प्रेजिंग द पुलकेशिन II चालुक्यन रूलर ऑफ वाटापी, एंड उसमें उस इंस्क्रिप्शन में कालिदास के भी बारे में लिखा हुआ है. द टर्म यवन प्रिय मेंशन इन द एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट, इट डिनोटेड पेपर, ब्लैक पेपर. द संगम लिटरेचर तोलकापियम, इट इज़ अ बुक ऑन तमिल ग्रामर. द ऑथर ऑफ शिल्पादिकरम, ये इडांगो अडिगल वॉज द ऑथर ऑफ शिल्पादिकरम. एंड थिरुकुरल इज़ अ बुक ऑन फिलोसफी. तोलकापियम अभी बताया मैंने, तमिल ग्रामर से जुड़ा था. शिल्पादिकरम तो जो इडांगो अडिगल ने लिखा था, दैट इज़ अ लव स्टोरी. एंड मनी मेघलाय, दैट इज़ ऑल्सो अ मर्चेंट लव स्टोरी. ठीक है. नाउ फ्रॉम द एक्सकवेशंस ऑफ एंशिएंट साइट्स गिवन नेमली मदुरई, ताम्रलिप्ति, टोंडी, अरिकामेडू, फ्रॉम विच द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गैदर्ड रिगार्डिंग द ब्रिस्क ट्रेड रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड रोम ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ क्रिश्चियन एरा. तो अरिकामेडू में जो एक पोर्ट सिटी थी और बहुत ट्रेडिंग पोर्ट सिटी थी, इससे हमें रोमन ट्रेड के बारे में काफ़ी पता चल रहा था ड्यूरिंग द अर्ली सेंचुरीज ऑफ द क्रिश्चियन एरा.
नाउ अम्फोरा जार ये भी एंशिएंट इंडिया में, सदर्न इंडिया में स्पेशली चोल वंश और चालुक्यन वंश के समय अम्फोरा जार का मतलब होता था डबल हैंडेड जार। आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज नेमली कदम्बा, चेरा, चोला एंड पांड्या विच इज़ नॉट मेंशन्ड इन द संगम लिटरेचर। तो ये कदम्बा डायनेस्टी के बारे में नहीं लिखा है, ठीक है। संगम की किताबों में कदम्ब के बारे में नहीं लिखा है, बाकी चोला, चेरा और पांड्या तो लिखा ही होगा। आउट ऑफ द गिवन रूलिंग डायनेस्टीज नेमली चेरा, चोला, पालवाज एंड पांड्या विच वॉज नॉट अ रूलिंग डायनेस्टी इन द तमिल। तो पालवा तो नहीं थे, ये काफ़ी बाद में आए थे, और तमिल में भी नहीं थे। दे वर लिटिल इन द एक्सटेंडिंग टूवर्ड्स द डेक्कन एंड अ लिटिल टूवर्ड्स सदर्न इंडिया, तो एक्सट्रीम साउथ में नहीं थे। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया। द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण was known to संगम पोएट्स। सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण, हाँ, बहुत प्रोमिनेंटली क्लासीफाई किया गया था उस समय। प्रीस्ट्स को कुछ और कहते थे और पेजेंट्स को कुछ और कहते थे, ज़मीन को भी कुछ कई नाम से पुकारा जाता था। तो द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वॉज नोन टू संगम पोएट्स, दैट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। एंड रिलीजियस एंथोलॉजी कुरल composed in the language of तमिल। अब यू कैन ये तो गेस कर सकते थे बिकॉज थिरुकुरल इज़ अ बुक ऑन फिलोसफी एंड इट इज़ रिटन इन आई थिंक तमिल में ही लिखा होगा। थिरुकुरल इज़ रिटन इन विच लैंग्वेज? सो ओल्ड तमिल में लिखी हुई है, सो दैट इज़ करेक्ट। ओके, द ऑथर ऑफ द तमिल राम अवतारम। अब राम अवतारम नामक कोई तमिल किताब लिखी थी, किसने? कम्बन ने लिखी थी। सो कम्बन हैड रिटन राम अवतारम नामक किताब जो तमिल में थी वो कम्बन ने लिखी थी। नाउ विद रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, द ट्रू स्टेटमेंट्स आर सिद्धास of Tamil region were monotheistic and condemned idolatry, and Lingayats of Kannada region questioned the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy. So Lingayats rejected the rebirth and they also rejected the caste system, whereas Siddhas, they were adherent to monotheistic principles and also they rejected idolatry. तो यहाँ पे हम रोकते हैं, फिर आके करते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक बता चुके थे कि ये जो सिद्धास बेसिकली वर ऑल्सो कॉल्ड एज सितार्स, दे वर फ्रॉम द तमिल रीजन एंड दे वर मोनोथीस्टिक एंड दे रिजेक्टेड आइडोलेट्री। सिमिलरली लिंगायत्स फ्रॉम कनाडा रीजन एंड दे क्वेश्चन द थ्योरी ऑफ रीबर्थ एंड दे रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। तो आइडोलेट्री को कंडेम करने वाले और मोनोथीस्टिक रिलीजन अपनाने वाले कौन थे? सिद्धास थे। देन लिंगायत्स ऑफ कनाडा रीजन थे। लिंगायत्स ऑफ कनाडा रीजन क्वेश्चनड the theory of rebirth and rejected the caste hierarchy. Now the correctly matched pairs are गुप्ता, ये देवगढ़ में कुछ बनवाए थे टेम्पल वगैरह, चंदेल ये खजुराहो में बनवाए थे, चालुक्याज ये बादामी वगैरह में बनवाए थे, यहीं पे इनकी कैपिटल भी थी। पालवाज, अब वैसे तो कांचीपुरम होता है बट इफ़ देयर इज़ एनी अदर प्लेस आफ्टर कांचीपुरम दैट यू कैन रिमेंबर एंड एसोसिएट विद पालवाज, दैट इज़ पन्नामलाई। रूलिंग डायनेस्टी एंड देयर कैपिटल्स, सो पालवास का कांचीपुरम में है, पांड्यास का मदुरई में है, यादवास का देवगिरी में है, काकटियास का वारंगल में है। द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स, अब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पालवा पावर अंडर महेंद्र वर्मन ये हो गया था लगभग 600 के आसपास। फिर पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाल, ये उसके बाद हुआ था। सो फर्स्ट पालवा आ गए थे, उसके बाद पाला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय गोपाल। एंड पाला डायनेस्टी के बाद फिर राइज ऑफ प्रतिहार्स किंग अंडर द किंग भोज। तो स्पेशली अगर राजा भोज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो राजा भोज हैज़ टू कम आफ्टर गोपाल ऑफ द पाला डायनेस्टी, एंड गोपाल ऑफ द पाला डायनेस्टी कम्स आफ्टर द पालवाज established by महेंद्र वर्मन वन, एंड फाइनली द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ चोला पावर अंडर द परंटक वन। तो ये कुछ क्रोनोलॉजी है, फिर से बता दे रहे हैं। पहले पालवाज आएंगे, फिर पालाज आएंगे, और पालाज के बाद फिर गुर्जरा प्रतिहार्स आएंगे जो राजा भोज वाली बात है, और फाइनली फिर चोल वंश आएगा स्पेशली अंडर द रूलर परंटक वन। द फेमस साउथ इंडियन द बैटल ऑफ टकोलम, ये हैपेंड बिटवीन द चोला एंड द राष्ट्रकूट एम्पायर। Out of the Kushans, Cheras, Western Shakas and the Vakatakas who established trade relations with the Roman Empire. So अब ये इस तरह से कर सकते हैं कि हाँ, तो चेराज जो थे ऑल्दो सभी ने थोड़ा बहुत बनाया था, बट आउट ऑफ द कुशान्स, चेराज, वेस्टर्न शाकाज एंड द वकटाकाज, अब इसमें कुशान्स तो बनाए ही थे बट दे वर मोर ऑफ ओरिएंटेड टूवर्ड्स द लैंड रूट। बाकी वेस्टर्न शाकाज उतना नहीं बनाए थे। वकटाकास तो बहुत शॉर्ट लिव्ड थे, तो वो कहाँ बनाएंगे। चेरास के पास थोड़ा शिपिंग और नेवल
कह सकते हैं उसके ज़रिए माध्यम से ये बना लिए रोमन ट्रेडिंग रिलेशंस. आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन नेमली चतुर्वेदी मंगलम, परिषद, अष्टदिग्गज and Manigramam, which was a corporation of merchants in ancient India. So it was Manigramam, but you must also look into the point of Chaturvedi Mangalam. What was Chaturvedi Mangalam in context of the ancient India? Chaturvedi Mangalam. So Chaturvedi Mangalam refers to a place peopled by scholars who were conversant with the four Vedas. The deity was at that time known as Kailasa Dev. The inscription refers to an organization called Alum Ganam, which was an administrative unit of the village. So चतुर्वेदी मंगलम जो था एक तरह से ब्राह्मण सेटलमेंट कह सकते हैं. वो लोग आके बैठते थे एक जगह पे जिनको वेद का ज्ञान होता था, और ये बेसिकली साउथ इंडिया में तमिल वाले रीजन में पालवा, चोला और पांड्या किंग में के दौरान ब्राह्मण सेटलमेंट्स को चतुर्वेदी मंगलम बोला जाता था इन वेरियस प्लेसेस ऑफ तमिलनाडु. सो और देख लेते हैं. इट वॉज अ ब्राह्मण सेटलमेंट. As per the inscription, Brahmins and people from other communities in the region had sought the permission of the king to construct a Devi Sirai check dam. Anyways, तो ये हो गया चतुर्देवी मंगलम. स्पेशली ये साउथ इंडिया में प्रेवलेंट था. बाकी अष्टदिग्गज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जानते हैं. मनीग्रामम एक ट्रेड एसोसिएशन. देन द रिवर दैट वाज द लाइफ लाइन ऑफ पांड्या, सो दैट वाज वेंगी. ठीक है. अभी ऊपर एक ट्रेड रूट पड़ा था बिटवीन कल्याण एंड वेंगी, दैट वाज सत्तागारा ट्रेड रूट. एंड त्रिपुर और श्रीपुर भी एक था, त्रिपुरी और श्रीपुर, और ताम्रलिप्ति तो पता ही है. तो अब ये जो वेंगी है, इट इज़ ऑल्सो द नेम ऑफ अ रिवर विच वॉज द लाइफ लाइन ऑफ द पांड्या स्टेट. द संगम पार्ट्स दैट वर सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट. अब वेस्टर्न कोस्ट पे कुछ पोर्ट पार्ट्स नहीं होगा, ये पोर्ट्स होंगे. तोंडी, मुशीरी और नौरा और नेलसिंडा, नौरा NAURA, नौरा and Neilsinda, Tondi and Mussiri. These were four ports of Sangam age on the western coast. According to the Sangam text, the terms कौन को मन्नान, तो ये कौन हो फिर के ओ या फिर मन्नान हो, these three terms were attributed to king in general. The third Sangam was held in Madurai. ठीक है, तीसरी जो संगम हुई थी वो मदुरई में हुई थी. Then the sage who is said to have Aryanized the South India, that was the sage Agastya. The correctly matched स्टेट और कैपिटल्स, तो चालुक्यास की बादामी में थी, पालवास की कांचीपुरम, हर्षा की कन्नौज में थी, पांड्या की मदुरई में थी. द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द पालवा रूलर्स. अब जो सिक्स्थ, अभी यहाँ पे हमने बताया था कि पहले पालवास आए थे बाय महेंद्र वर्मन, देन गोपाल सेट अप द पाल डायनेस्टी, एंड देन केम राजा भोज ऑफ आई थिंक परामर्स, एंड फाइनली चोल वंश आए थे अंडर परंटक. तो वो सीक्वेंस याद रखना है. अब विद इन द पालवा रूलर्स विच स्टार्टेड फ्रॉम 600 बाय महेंद्र वर्मन 1 और उसके बाद नरसिम्हा वर्मन 1. तो मोस्ट ऑफ द जो रथ टेम्पल्स हैं वो नरसिम्हा वर्मन 1 बनवाए हैं, और हालांकि जो फाउंडर थे वो महेंद्र वर्मन 1 थे. 600 CE के आसपास से लेके 30 साल तक रूल किए थे. फिर 630 से 668 तक नरसिम्हा वर्मन 1, और फिर परमेश्वर वर्मन फर्स्ट आ गए थे 670 से 700 AD तक. ठीक है, और फिर 730 से नंदी वर्मन द सेकेंड आए थे. तो ये एक क्रोनोलॉजी है. MNPN, महेंद्र वर्मन 1, नरसिम्हा वर्मन 1, परमेश्वर वर्मन 1 और फिर नंदी वर्मन 1. आउट ऑफ द गिवन Chinese travelers, namely Fa Hin, Huan Tsang, It-sing and Matwalin, who has given an account of the relationship with China with India during the reign of Chalukyas. तो चालुक्यास तक आते आते जो मतलब वैसे तो हर्षा के समय आए थे वो सब ह्यून सैंग वगैरह, लेकिन चालुक्यास के समय यानी थोड़ा बाद में भी एक चाइनीज़ ट्रैवलर आए थे जो कि चाइना के साथ रिलेशंस एक्सप्लेन किए हैं. दैट वाज मतवालिन. आउट ऑफ द गिवन डायनेस्टीज नेमली चालुक्यास, राजपूत्स, गुप्ता एंड मौर्यास हु डिड नॉट रूल ओवर नॉर्थ इंडिया. तो ये चालुक्यास कहाँ थे भाई? द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग्स, ये वाराणसी के थे. नाउ दिस इज़ अगेन एंड अगेन क्रिएटिंग एन इरिटेंट फॉर मी बिकॉज ये मैं पहली बार देख रहा हूँ. कदम्बा रूलर्स ये वाराणसी से रूल करते थे. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. कदम्बा रूलर्स दे वर लोकलाइज्ड टू वाराणसी. मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में है, पांड्याज ने बनवाया था. और द डायनेस्टी ऑफ द साउथ इंडियन किंग हु सेंट एन एम्बेसडर टू द किंगडम ऑफ रोम, तो ये पांड्याज 26 BCE में पांड्याज ने रोम में एक एम्बेसडर भेजा था रोम में.
अब वैसे तो देखा जाए तो चेराज ऑल्सो सेटअप द मैक्सिमम रिलेशनशिप विद द रोमन एम्पायर आउट ऑफ द चोला, चेरा एंड पांड्या. बट 26 BC का अगर लिख के अलग से देगा तो दैट मीन्स तो वो पांड्यन एम्पायर का एक एम्बेसडर गया था रोम 26 BC में. द फॉलोइंग लिस्ट इज़ करेक्टली मैच्ड. मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में स्थित है. वेंकटेश्वर मंदिर ये तिरुमाला आंध्र प्रदेश में. यहीं पे तो वो लड्डू वाला कंट्रोवर्सी हुआ था. लड्डू मेड यूजिंग घी दैट वाज मेड फ्रॉम काउ फैट. महाकाल मंदिर उज्जैन में है और वेल्लोर मठ ये हावड़ा वेस्ट बंगाल में है. तो ये वाला भूल सकता है. वेल्लोर मठ जो है दैट इज़ इन हावड़ा वेस्ट बंगाल. लेट्स हैव अ लुक. वेल्लोर मठ या बेलूर मठ कहाँ है ये? वेयर इज़ इट? वेल्लोर टेम्पल इन ये यार कुछ गलत दिखा रहे हैं. वेल्लोर मठ हावड़ा में जो है वो बेलूर मठ है. ये BELUR बेलूर मठ. एंड रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन ये वही वाला है. बेलूर मठ हावड़ा वेस्ट बंगाल. ठीक है, तो रामकृष्ण वाला है ये. वेल्लोर स्पेलिंग गलत लिखी है, एक्चुअली ये बेलूर होगा. अदरवाइज़ देयर इज़ अ डिफरेंट वेल्लोर इन साउथ इंडिया. तो ये कंप्लीट हो गया हमारा